Assalamu alaikum students. Welcome in the class of Inorganic Chemistry 2. As you people know that we are studying complexes of pi accepted ligands, and in nitrosyl complexes today we are going to discuss bonding in metal nitrosyls. This is going to be a very important and interesting lecture, so you should take it with keen interest. So nitric oxide molecule is similar with the carbon monoxide, except that it contains one more electron which occupies a pi star orbital. So as you can see here, this is the molecular orbital diagram of nitric oxide, and this is for carbon monoxide. And here you can see that one electron is occupying pi star orbital, and you can see here that all the pi star orbitals, they are empty. So this is the basic difference between nitric oxide molecule MOT diagram and carbon monoxide MOT diagram, that in case of nitric oxide molecule we have this electron lying here, while in case of carbonyl these pi star, or you can say all the anti-bonding orbitals, they are empty. So as a result of this carbon monoxide, you can see in case of carbon monoxide you have a triple bond, while in case of nitric oxide, as I have discussed in detail in the previous lecture, nitric oxide molecule having an electron in antibonding, and because of the presence of this one electron in the antibonding, the nitric oxide molecule is having 2.5 bonding. Carbon monoxide and nitric oxide makes many comparable complexes. Although as a result of additional electron, nitric oxide form another class of metal nitrosyl complexes which is bent. और इस एनालॉग के इस बेंट जो स्ट्रक्चर बनती है मेटल नाइट्रोसाइल की, उससे रेलेवेंट कार्बोनाइल का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, तो आगे जाके हम डिटेल से देखेंगे कि किस तरह से जो मेटल नाइट्रोसाइल्स हैं दे आर हैविंग बेंट स्ट्रक्चर एज वेल. Most complexes containing the nitric oxide ligand can be viewed as derivatives of the nitrosyl cation. ठीक है, तो वो वाले कॉम्प्लेक्सेस जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड लीगेंड है, तो एक्चुअली उनको हम कंसिडर कर सकते हैं एज डेरिवेटिव्स ऑफ नाइट्रोसाइल केटाइन, और नाइट्रोसाइल केटाइन को हम नाइट्रोसोनियम आयन भी बोलते हैं. ठीक है, तो एक्चुअली वो नाइट्रोसाइल केटाइन के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, उसी से ये बनते हैं. अब नाइट्रोसाइल केटाइन कैसे बनता है कि जो पाई स्टार में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जाहिर है नाइट्रिक ऑक्साइड का मॉलिक्यूल उसको दे देगा तो नाइट्रोसोनियम आयन बन जाएगा. द नाइट्रोसाइल केटाइन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन मोनोऑक्साइड. सो एज आई हैव सेड, अगर उसके पाई स्टार में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो दे देगा, एक तो नाइट्रोसोनियम आयन बन जाएगा और दूसरा वो फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा. इट विल हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज द कार्बन मोनोऑक्साइड. Thus, the bonding between a nitrosyl ligand and a metal follows the same principles as the bonding in carbonyl complexes. So, when we have nitrosonium ion, so as it is having the same number of electron as carbon monoxide, that is why bonding rules as these rules are applied in carbonyl complexes, so these rules will also apply in complexes containing this nitrosonium ion. The nitrosyl cation serves as a 2-electron donor to the metal and accepts electron from the metal by back bonding. ठीक है, अब जो नाइट्रोसाइल केटाइन है
वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और ये जो मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसमें नाइट्रोजन एटम का मेटल के साथ बॉन्डिंग बनती है। इसका मतलब कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लॉन पेयर होता है वो ये डोनेट करता है मेटल को, ठीक है। और जब मेटल के ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है तो मेटल फिर वापस इलेक्ट्रॉन देता है नाइट्रोसोनियम आयन को, ठीक है, बाय बैक बॉन्डिंग। द कंपाउंड्स ऑफ CONOCO3 and NiCO4 illustrate the analogy between nitrosonium ion and cobalt, right? तो यहाँ पर ये वाले जो यानी यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये नाइट्रोसोनियम आयन की फॉर्म में है। और अब इसमें देखें यहाँ पर ये 4 लिगेंड्स हैं, जिसमें 3 ये कार्बोनाइल है और एक ये नाइट्रोसोनियम आयन है। और इसी तरह ये NiCO4 जो है इसमें भी 4 लिगेंड हैं, ऑल ऑफ देम आर ऑफ कार्बोनाइल। और ये सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं, यानी 4 ही कोबाल्ट के साथ ये वाले लिगेंड्स हैं और निकल के साथ ये 4 लिगेंड्स अटैच हैं। सो दीज आर एनालॉगस टू ईच अदर। और इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इट इज इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन। Now we will see the methods of bonding of nitric oxide with metal. So the first method is by the donation of one electron from the anti-bonding molecular orbital to the metal, followed by the addition of electron pair donation from nitrosonium cation. Thus it will act as 3 electron donor. So as you can see in this reaction, there we have metal, and then this is नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल। और जब एंटी बॉन्डिंग में से एक इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये M- बन जाएगा और इसके ऊपर नाइट्रिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एंड वी विल सी शॉर्टली कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर फिर इस मेटल आयन को डोनेट हो जाएगा और उससे क्या होगा कि इस तरह से ये वाला 1 जो ऑलरेडी मेटल को दिया गया है, जिसकी वजह से ये माइनस चार्ज हो, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, और एक ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल के पास जाएगा। और इस तरह से ओवरऑल जो नाइट्रिक ऑक्साइड का मॉलिक्यूल है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन, इट विल एक्ट एज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। अच्छा, सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि बाय द डोनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रिक ऑक्साइड, सो हियर नाइट्रिक ऑक्साइड इट विल एक्ट एज अ न्यूट्रल लिगेंड। और सिर्फ ये जो नाइट्रोजन के पास ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये डोनेट करेगा मेटल को, एंड इन दिस वे इट विल एक्ट एज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। और एक तीसरी सिचुएशन है जिसके मुताबिक बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल टू नाइट्रिक ऑक्साइड टू फॉर्म NO-1 इलेक्ट्रॉन डोनर। अब देखें, अगर मेटल के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी तो ये बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, पाई बैक बॉन्डिंग। तो क्या होगा कि मेटल इस एक्सेस को रिमूव करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन वो नाइट्रिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल को दे दे तो वो NO- बन जाएगा। और ओवरऑल पहले फॉर एग्जांपल नाइट्रोसोनियम कीटाइन के केस में उसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 वापस आ गए, तो इस तरह से ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर एक्ट करेगा। सो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर, राइट। तो यहाँ पर देखें, ये पहले नाइट्रिक ऑक्साइड का जो आपके पास ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड का पहले आपके पास ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, ये नाइट्रोसोनियम आयन में केटाइन नाइट्रोसोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ और ये M- यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब ये देखिए, नाइट्रोजन ने ये वाला लॉन पेयर इस मेटल को डोनेट किया, ये M-2 हो गया, राइट। और this is the donation of electron pair from nitrogen to this मेटल एटम। और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं जब नाइट्रोजन ने अपना दिया, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और इस बॉन्डिंग में, ये ट्रिपल बॉन्डिंग में ऑक्सीजन अपना एक लॉन पेयर चूंकि यूज कर रहा है तो इसके पास ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। अब मेटल के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से क्या है कि मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को देगा, ठीक है। अब ये देखें, ये 2 वे प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस जो है साइमल्टेनियसली हो रहा है, राइट। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर की एक्सेस हो रही है और ये फिर पाई बैक बॉन्डिंग से
ये मेटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेस को रिलीज करने के लिए ये नाइट्रोजन को, सो दिस इज साइमल्टेनियस प्रोसेस। और उसकी वजह से क्या होता है कि मेटल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है, जिसको यहाँ पर -2 से रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ पर इसको माइनस से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इस तरह से मेटल जो है वो अपनी एक्सेस रिमूव कर लेगा। और इन दैट केस हम कहेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है, दिस इज एक्टिंग एज वन इलेक्ट्रॉन डोनर। Okay. Nitric oxide can bond with metal ions in a variety of manners, such as linear, bent, doubly bridged, triply bridged. ठीक है, तो इसमें often more than one bonding is observed in the same complex, right? So this has the linear bonding, and these are the two canonical form of MNO linear bonding। और हम जानते हैं कि जो लीनियर ज्योमेट्री है, दिस इज एसोसिएटेड विद sp हाइब्रिडाइजेशन, जबकि जो बेंट ज्योमेट्री है, दिस इज एसोसिएटेड विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसी तरह ये जो ब्रिजिंग में है, ब्रिज जो है वो डबली ब्रिज भी हो सकता है। इसमें आप देखें कि ये एक नाइट्रिक ऑक्साइड का लिगेंड जो है दो मेटल के साथ ये अटैच्ड है, सो दिस इज डबली ब्रिज्ड, या फिर ट्रिपली ब्रिजिंग भी हो सकती है। और आमतौर पे ये होता है कि लीनियर बेंट या ब्रिजिंग जो है ज्योमेट्री वो एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर पॉसिबल होती है। एंड दीज आर द, एज यू कैन सी, टू कैनोनिकल फॉर्म, राइट। और वैसे तो आपको पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से जो नाइट्रोजन और मेटल के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है, बिकॉज ऑफ द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम नाइट्रोजन टू मेटल, ठीक है, वो सिग्मा बॉन्ड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया बैक बॉन्डिंग की वजह से, राइट। तो अब पहले यहाँ पर देखें ऑक्सीजन के ऊपर एक लॉन पेयर है, लेकिन अब क्या हुआ है कि जब मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ से ये वाला एक और इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो गया, राइट। और मेटल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की ज्यादती थी वो आप देख सकते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ दिस बॉन्ड यहाँ पे ये शिफ्ट हो गई। So these are the two canonical linear form. As I have said, linear form is associated with sp hybridization, while bent and bridging it is associated with sp2 hybridization. So now we will discuss in detail linear metal nitrosyl groups. अच्छा, इसको पहले हम दोबारा से कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कंपेयर करेंगे। कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्ट विद अ मेटल एटम दैट प्रेजेंट एन एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल एंड अ पेयर ऑफ फिल्ड d ऑर्बिटल टू गिव लीनियर MCO ग्रुप। तो एक्चुअली मेटल कार्बोनाइल ग्रुप जो हैं ये लीनियर ही होते हैं। उसकी रीजन बेसिकली ये हमारे पास एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल हैं जो कि कार्बोनाइल के अंदर एम्प्टी होते हैं। Full set of 4 electron for MD star NO interaction is made up of 3 electron from the metal and 1 electron from uh, nitric oxide. Nitric oxide contributes 3 electron to total bonding configuration. Nitric oxide considered as ligand with 3 electron donor while carbon monoxide as 2 electron donor. अच्छा जी, अब इन पॉइंट्स को समझने के लिए आई हैव अगेन गिवन दिस फिगर, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं जब मेटल जो है बैक बॉन्डिंग करता है इस नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो फुल कितने हो गए हमारे पास? 4 इलेक्ट्रॉन्स। और ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग के जरिए ये मेटल प्रोवाइड करती है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला जो पाई स्टार होता है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड की एंटी बॉन्डिंग में, वो यूज होता है, राइट। ये MD स्टार NO इंटरेक्शन, राइट, यानी मेटल का बैक बॉन्डिंग के जरिए जो MD स्टार मेटल के जो D में प्रेजेंट है ऑर्बिटल्स और उनका जो NO के साथ इंटरेक्शन है, इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन ये मेटल प्रोवाइड करता है MD स्टार, और
एक इलेक्ट्रॉन ये वाला NO से लिया जाता है, लेकिन ओवरऑल जो है NO कंट्रीब्यूट टू 3 इलेक्ट्रॉन टू द टोटल बॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब ये टोटल बॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है कि यहाँ पर देखें कि मेटल और ये नाइट्रोजन के दरमियान ये सिग्मा बॉन्ड भी है, ठीक है। तो अब इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस सिग्मा बॉन्ड के लिए जो है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, और उससे पहले अगर नाइट्रिक ऑक्साइड का मॉलिक्यूल नाइट्रोसोनियम आयन की फॉर्म में है तो एक इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रिक ऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग में है वो ये पहले ही मेटल को दे चुका होता है। तो ओवरऑल जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का मॉलिक्यूल 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि NO कंसिडर्ड एज लिगेंड विद 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, राइट। जो कार्बन के ऊपर लॉन पेयर है वही ये डोनेट करता है। सो दिस इज द नेचर ऑफ सिग्मा एंड पाई ओवरलैप इन मेटल नाइट्रोसाइल complexes. So here this is the sigma bond, this is pi bond, this is pi bond, because a triple bond exists between nitrogen and oxygen. This is again sigma bond, and these are for pi bonding. ओके अब इससे हमें ये पता चलता है कि this becomes evident from a series of isoelectronic carbonyl and carbonyl nitrosyl complexes. यानी ये चीज के जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो 3 इलेक्ट्रॉन देता है बॉन्डिंग के लिए, और जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। जब हम कंपैरिजन करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें FeCO5, दिस इज कंपेरेबल विद FeCO2NO2। तो इसमें क्या है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। मतलब ये डिफरेंट एनालिसिस से इसको जज किया गया है। अब इसमें आयरन पेंटा कार्बोनाइल, इसमें 5 कार्बोनाइल लिगेंड्स हैं, जबकि इसमें 2 कार्बोनाइल और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसके भी 2 लिगेंड्स हैं, तो ओवरऑल हुए 4। और अगर हम ये कंसिडर करें कि देखें कार्बोनाइल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और 2 5s are 10, तो ओवरऑल इसने 10 इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट किए। अब इधर देखें कार्बोनाइल ने 2 दिए और ये 2 हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और हम ये कह रहे हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो 3 देता है, तो 2 3s are 6, तो ये 6 और ये 4, तो ये ओवरऑल 10 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। इसलिए ये आयरन पेंटा कार्बोनाइल दिस इज एनालॉगस टू FeCO2NO2। लाइकवाइज यहाँ पर आप देखें हमारे पास है मैग्नीज CO4NO एंड मैग्नीज CONO3, दीज कॉम्प्लेक्सेस दीज आर आल्सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, वो किस तरह से कि यहाँ पर हम ये तस्वुर करते हैं कि कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो अगर ये 4 लिगेंड है तो इसने 8 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए। नाइट्रिक ऑक्साइड ने 3 लिगेंड दिए तो ये हो गए 8 और 3 11, यानी 8 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 11। अब इधर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड will give 3 electrons, 3 3s are 9 plus 2, so 9 plus 2 these are 11. So in this way we will consider these as isoelectronic ligands. Structural data suggests that metal carbonyl and metal nitric oxide bonds these are equally strong. अच्छा, अब स्ट्रक्चरल डेटा ये सजेस्ट करता है, लेकिन केमिकल रिएक्शंस में देखा गया है कि जो मेटल का यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोसाइड में जो बॉन्ड है मेटल का नाइट्रोजन के साथ वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्बोनाइल इन प्रेफरेंस टू NO ऑन मिक्स्ड कार्बोनाइल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारे पास मिक्स्ड कार्बोनाइल नाइट्रोसाइल रिएक्शंस हैं, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये देखा गया है कि इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में कार्बोनाइल जो है वो पहले सब्स्टिट्यूट होता है किसी दूसरे स्पीशी के साथ बनिस्बत NO के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो MN बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस के केस में मैंने जो इनका IR स्पेक्ट्रा है उस पर अलग लेक्चर था, लेकिन इस केस में बॉन्डिंग इन मेटल नाइट्रोसाइल में जो IR स्पेक्ट्रा
की इम्पोर्टेंस हम इसी लेक्चर के दौरान डिस्कस कर लेंगे। द मेटल नाइट्रोजन ऑक्सीजन यूनिट इन नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस इज यूजुअली लीनियर, आमतौर पे लीनियर होता है, ठीक है, ये बॉन्ड मेटल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, या फिर जो डेविएशन होती है दिस इज जस्ट 15 डिग्री फ्रॉम लीनियर। जो लीनियर एंड बेंट नाइट्रिक ऑक्साइड लिगेंड्स हैं दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड यूजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब देखें दिस इज द लीनियर ग्रुप, राइट, और इसमें देखें जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड होता है वो होता है ट्रिपल, जबकि जो बेंट ज्योमेट्री इसकी बनती है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो दिस कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी दिस इज बेसिकली फॉर द फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जो लीनियर एमएनओ ग्रुप्स हैं दे एब्जॉर्ब इन द रेंज ऑफ 1650 टू 1900 सेंटीमीटर इनवर्स लाइन, ठीक है, ये वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज हैं, राइट, ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड if it is linear. So this is in the range of 1525 to 1690 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। तो ये जो है ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ये फ्रिक्वेंसी ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, जबकि जो हमारे पास जो बेंट नाइट्रोसाइल एब्जॉर्ब इन द रीजन ऑफ 1525 टू 1690 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाले दोनों ग्रुप्स जो हैं ये बेंट ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं दिस फॉल इन द रीजन ऑफ 1525 टू 1690। तो एक्चुअली बेंट जो ज्योमेट्री है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, तो ऑब्वियसली ये लोअर फ्रिक्वेंसी पे फॉल करेगा, लोअर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी पे ये फॉल करेगा, जबकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला ये हायर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी पे फॉल करेगा। तो इस तरह से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए आप जो लीनियर और बेंट नाइट्रिक ऑक्साइड अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है तो इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें ये ऑर्बिटल डायग्राम्स हैं मेटल की और डिफरेंट लिगेंड्स की। एक साइड पे तो जो एक लिगेंड है वो नाइट्रिक ऑक्साइड लिगेंड ही है एज यू कैन सी हियर, जबकि इस साइड पे ये नाइट्रोजन के साथ ये 3 आर ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये वाले जो एरोज हैं ये सिंपल एरोज दे इंडिकेट सिग्मा डोनेशन विच इज फ्रॉम द लिगेंड टू द मेटल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास देखें नाइट्रिक ऑक्साइड लिगेंड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ये ट्रिपल बॉन्ड शो हो रहा है, और ये जो पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल के ये यहाँ पर शो किए हुए हैं। तो आर्बिट्रेरीली हम क्या करते हैं कि जो पाई स्टार ऑर्बिटल हैं उसमें आपको पता है उनकी ज्योमेट्री जो है इस तरह की होती है, ठीक है। तो एक जो ट्रांसफॉर्म में एक कोई आर्बिट्रेरीली है, ये हमने इसको ब्लैक शो किया हुआ है और इसको जो है वो एम्प्टी शो किया हुआ है। तो अब इसमें देखें कि होता क्या है कि ये नाइट्रोजन से लॉन पेयर जो है ये देखें ये सिग्मा बॉन्ड को डोनेट रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन से ये मेटल और नाइट्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनता है, एंड दीज आर द दिस वन दिस दीज आर द डी पाई ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल, ठीक है। तो ये वाला एरो जो है मेटल से बैक डोनेशन टू द लीगेंड, इट रिप्रेजेंट द बैक डोनेशन फ्रॉम मेटल टुवर्ड्स लीगेंड। यहाँ पर आपने इस बात को अभी कंसिडर नहीं करना, इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, लाइकवाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बीच में ये मेटल एटम है, ठीक है, इधर एक साइड पे ये नाइट्रिक ऑक्साइड लिगेंड है और दूसरी तरफ ये साइनाइड लिगेंड है, और ये वाला सिग्मा बॉन्ड बनता है विच इज ड्यू टू डोनेशन फ्रॉम nitrogen to metal, right? Here this is also the formation of sigma bond which is due to the donation of electron pair from carbon to metal, और ये वाला बड़ा एरो जो है ये रिप्रेजेंट करता है पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब जहाँ पर ये वाला एरो ज़्यादा बड़ा है इट मीन्स के मेटल में से इलेक्ट्रॉन का फ्लो लिगेंड की तरफ पाई बैक बॉन्डिंग की सूरत में ज़्यादा है, जबकि अगर ये एरो का विड्थ छोटा है एज यू कैन सी हियर,
इट मीन्स कि मेटल में से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाय मीन्स ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग वो कम है. Likewise, you can see a ligand, complex here, in which metal is surrounded by nitric oxide ligand and then this chloro ligand. ठीक है. Again, sigma bond is due to the donation of electron pair from nitrogen to metal or electron pair from chloro group to metal. So this was about some of the orbital diagram which exist between metal and the ligands. Now we will discuss about bent MNO group. So a second series of complexes has been reported where bent MNO groups have been reported. तो इसमें ये जो मेटल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ये बेंट ज्योमेट्री होती है. तो अब इसमें क्या है, नॉन लीनियर कंपाउंड्स exhibit weakening of Mn and No distances which is consistent with No infrared stretching frequencies. For example, bent MNO shown in given complex as you can see here. ठीक है. तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इस कॉम्प्लेक्स में लीनियर और बेंट दोनों नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रुप्स हैं. सो दिस इज लीनियर मेटल नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड एंड दिस इज बेंट मेटल नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड. अब यहाँ पे देखें एक्चुअली बॉन्डिंग शो नहीं की हुई, बस और सिंपली सिंगल सिंगल बॉन्ड शो किया हुआ है. लेकिन जहां पर बेंट ज्योमेट्री होती है वहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और जहां पे ये वाली लीनियर ज्योमेट्री होती है वहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है. और इस बात की वजाहत जो है हमें इनके इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा से भी मिलती है कि जो लीनियर MNO ग्रुप हैं वो हायर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब होते हैं, और जो बेंट MNO ग्रुप हैं डबल बॉन्ड की वजह से वो लोअर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब होते हैं. So we have several complexes which have bent NO group with bond angles 120 डिग्री. ठीक है. तो अब इसमें यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लीनियर और बेंट दोनों हैं. राइट. इसमें जो है सिर्फ आपके पास बेंट जो ज्योमेट्री है, और बहुत सारे एक्चुअली ऐसे कॉम्प्लेक्सेस देखे गए हैं बेंट NO ग्रुप के साथ, और इसमें जो बॉन्ड एंगल है हियर you can see the bond angle is 120 degree. Carbonyl group in an isoelectronic cationic ruthenium complex can be replaced by a second NO group which is structurally represented in given complex. ठीक है. अब एक्चुअली हुआ क्या है कि यहाँ पर देखें ये वाला बेंट ज्योमेट्री है यहाँ पर इस मेटल नाइट्रिक ऑक्सीजन की, और यहाँ पर ये जो इरिडियम के साथ ये कार्बोनाइल अटैच है. और इसमें क्या हुआ कि जब हमने इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया तो इस कार्बोनाइल की जगह यू कैन सी ये नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रुप लग गया. और इस वजह से क्या है, ये हमने पिछली स्लाइड्स पे भी डिस्कस किया है, कार्बोनाइल जो है वो आमतौर पे लीनियर ज्योमेट्री की फॉर्म में ही आता है. तो इस वजह से इसके साथ ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रुप अटैच हुआ है दिस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ लीनियर ज्योमेट्री. तो इस तरह से यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में इस कार्बोनाइल की जगह यहाँ पर ये नाइट्रिक ऑक्साइड सब्स्टिट्यूट हो चुका है. It is noted that this complex contain both linear and bent NO groups. So you can see this is the bent NO group and this is the linear NO group. Now we will discuss shortly about bridging nitric oxide groups, and we will see that how infrared spectroscopy is beneficial for the identification of these groups. जो ब्रिजिंग नाइट्रोसाइल ग्रुप्स हैं नाइट्रोसोनियम आयन के रिलेटेड या नाइट्रिक ऑक्साइड से रिलेटेड, दीज आर लेस कॉमन बट वेल एस्टेब्लिश्ड केसेस ऑफ बोथ डबल एंड ट्रिपल ब्रिजेस, दीज आर नॉन. ठीक है. अब ब्रिज्ड जैसा कि हमने कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस के केस में देखा, उसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड का लीगेंड होगा उसका
एक नाइट्रिक ऑक्साइड लिगेंड का जो नाइट्रोजन है वो दो मेटल्स के साथ अटैच होगा। ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे भी इसकी ज्योमेट्री देख लेंगे, ठीक है। तो जो टर्मिनल लीनियर नाइट्रो ग्रुप हैं उनका आईआर बैंड होता है 672 सेंटीमीटर इनवर्स पे देखने में आता है। यानी जो लीनियर नाइट्रिक ऑक्साइड टर्मिनल लिगेंड है उसमें एक्चुअली क्या होगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है और वो हाई फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करता है, जबकि जो डबली ब्रिज्ड बॉन्ड नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रुप है दिस शो द स्ट्रेचिंग बैंड एट 1505 सेंटीमीटर इनवर्स। अब उसमें क्या है कि चूंकि ये नाइट्रोजन जो है इस साइड पे भी फॉर एग्जांपल और इस साइड पे भी मेटल आयन के साथ अटैच होता है, और अब इसकी वजह से ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है वो एक्चुअली डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस वजह से यहाँ पर जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हाई फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब हुआ, और यहाँ पे नाइट्रोजन दोनों तरफ मेटल्स के साथ अटैच होने की वजह से ये डबल बॉन्ड होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, वो लोअर फ्रिक्वेंसी विच इज फॉर एग्जांपल 1505 सेंटीमीटर इनवर्स ये उस पे एब्जॉर्ब होगा। अब दोनों कंडीशन में जो नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रुप है इसको हम 3 इलेक्ट्रॉन डोनर कंसिडर करते हैं, और जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है टू फॉर्म टू मेटल टू नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड्स दिस इज सप्लाइड बाय वन ऑफ द मेटल एटम, ठीक है। अब जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्डिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो मेटल जो है वो सप्लाई करता है वन ऑफ द मेटल एटम, because actually we know that in these complexes metals these are very rich in electrons. So these are the structures of metal nitrosyl complexes with terminal and bridging NO groups, right? So here you can see this is terminal NO group, right? जो कि सिर्फ एक ही मेटल एटम के साथ अटैच्ड है, and this is bridged NO group which is attached to two metal atom, one is this, one is this. अब ये जो टर्मिनल ग्रुप है इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, और ये जो ब्रिज्ड है अपना नाइट्रिक ऑक्साइड का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में जिसमें टर्मिनल भी है और ब्रिज्ड नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रुप भी है, ठीक है, तो उसमें आपको दो फ्रीक्वेंसीज नजर आती हैं, एक इस ट्रिपल बॉन्ड बिकॉज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और एक ड्यू टू डबल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये वाला ग्रुप जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे फॉल करता है, और ये वाला ग्रुप जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे फॉल करता है, ठीक है। तो अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में कि यहाँ पर ये वाला इस अमाइन ग्रुप की जगह ये एक और नाइट्रिक ऑक्साइड का ग्रुप जो है वो सब्सटीट्यूट हो चुका है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। तो इसमें भी ये टर्मिनल भी हैं आपके पास, this is also terminal, this is bridged and this is bridged nitric oxide group। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में हमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा में एक सिग्नल हमें ये टर्मिनल नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रुप्स की वजह से मिलेगा, और एक सिग्नल जो है ये हमें ब्रिज्ड यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रुप की वजह से मिलेगा। अब इस केस में क्या है, यू कैन सी कि यहाँ पर एक नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रिज्ड फॉर्म में है और यहाँ पर दो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ब्रिज्ड फॉर्म में है। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा में ब्रिजिंग की इंटेंसिटी यानी डबल बॉन्ड के सिग्नल की इंटेंसिटी इस केस में ज्यादा होगी बनिस्बत इस केस में। So in this way infrared spectroscopy can be used as a tool for the identification, qualification and quantification of terminal and bridging nitric oxide और nitrosyl ligand present in these complexes। अब इन तमाम complexes में ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसको हम 3 इलेक्ट्रॉन डोनर कंसिडर करेंगे, और ये जो सिग्मा बॉन्ड है बन रहा यहाँ पर ब्रिजिंग की फॉर्म में, देखें ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। अब जाहिर है अब नाइट्रोजन के पास तो इतने इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते, एक मेटल के साथ तो ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और दूसरे मेटल के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे तो ये दूसरा मेटल एटम प्रोवाइड करेगा। होप दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you are very welcome to ask।
So thank you very much for watching this video. So if you have understood, please subscribe, like and share. Allah Hafiz.